बना दे। Thank you. Now question number 66, Mani Shri Imran Pratapgarhi. Absent. Mantri ji. Respected Chairman, sir. Answer is laid on the table, sir. Thank you. Honorable G.K. Vasan, your question. Sports sector in the country are steadily doing well, no doubt, sir. But at the same time, sir, I would like to tell the Honorable Minister that minor ports are competitive to the major government ports in the country, sir. I would only like to know from the Honorable Minister what steps the central government has taken to enhance performance parameter for the major ports in the country for the efficiency of functioning of the ports. Thank you, sir. Thank you. Respected Deputy Chairman, sir. Particularly for the growth of the national economy, the Ministry of Port, Shipping and Waterways taking a lot of initiative under the able leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Since 2014 onwards till 2022, we have, under his guidance, brought some revolutionary changes, particularly in the infrastructure development. Honorable Prime Ministers who have launched Sagarmala program. Through this particular program, the main objective was to develop the infrastructure, particularly in the ports, port modernization, port-led industrialization, port-led connectivity enhancement, coastal community development, coastal shipping, and inland waterways. These are all important components of Sagarmala program, and by going through detailed consultation with all the stakeholders, State Maritime Board, State Government, Union Territories, and we have all other stakeholders, we have identified 802 projects, and out of this, so far, 210 projects have already been completed, 220 is under implementation, and 371 is under different stages of implementation. So this has brought revolutionary changes, particularly for the capacity enhancement of the port, be it modernization, be it mechanization, be it digitization. In all aspects, whatever global level of facility needs to be developed, that was being done, and because of this, all the major ports have developed their cargo handling capacity. As a result, now, if you go through all the data, then you will see every year there is a growth of 6% cargo handling capacity, whether it is coastal shipping, whether it is EXIM cargo, whether it is inland waterways. So in the all aspect, the success story has revealed the fact of happening that under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister, this country, particularly shipping being the largest transporter of the country, played a very, very important role. And we have also created scope for the private sector to take important part. Thank you. And because of the introduction of PPP mode, so far, every major port Please have be got the brief. investment. Please be brief because there is other question also. Yeah. So I believe this is how the entire Ministry of Port, Shipping and Waterways is growing with the support of the other stakeholders. Thank you. Dr. Sasmit Patra. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. Paradip Port in Odisha, sir, has been doing extremely well and is one of the largest cargo handling capacities today in the country.
My specific question to the Honourable Minister is, what are the plans and programs that the Ministry is considering to increase the capacity, handling and operations of the Paradip port in Odisha? Paradip port, one of the largest ports of India, having the capacity of maximum number of bulk cargo handling. And that is why it is become one of the most profit-making ports, and now aiming to become the mega port in the near future. That is why, whether it is Western Dock, Eastern Dock, this kind of project has been brought into place, and by spending several thousand crores, particularly with the equity of the private players, and this has created a lot of attraction, particularly the location and also the environment that is there in the Paradip port. It is unique, and for your information, by 2047, Paradip port capacity will be more than 5 million ton. This is the target we have set, and just to achieve that target, we are developing all kinds of infrastructure that is required. Honorable members, House stands adjourned till 2 p.m. गांव में वाटर बॉडी नहीं, मई जून में जानवरों को पीने का पानी नहीं है। ये आप यकीन करिए, कोविड की चुनौती आई, अगर लोग शहरों से मेट्रो से गांव गए, जहां प्रधानमंत्री ने सोचा मनरेगा को हम में लोगों को जॉब दें, वहीं उनको एक संकल्प आया कि हर गांव में हम अमृत सरोवर बनाएंगे। 25,000 अमृत सरोवर बनाने का काम किया। श्री डीन कुरियाकोस जी मंत्री हैं, और अब 50,000 का टारगेट 2023 तक गिरिराज जी ने 50,000 का टारगेट रखा। आप उन गांव में चलिए, आपके मेरठ में भी जो सरोवर अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसमें पाथवे है। नाउ प्लीज 2 मिनट काम आ गया। नहीं 2 मिनट दूंगा, अभी तो मैंने मानवर शुरू वो वाक्य केवल बोलिए प्लीज, ओनली 2 सेंटेंसेस। तो 111 बस बता दूं 5 ट्रिलियन डॉलर के लिए मैं जो बात कर रहा हूं, इनके नॉलेज के लिए रहेगा, इनके ज्ञान के लिए रहेगा। तो वो मैं कहना चाहता हूं कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर कैसे अचीव करेंगे। 111 लाख करोड़ हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने जा रहे हैं, और आने वाले 25 तक हम 5 ट्रिलियन डॉलर हम करेंगे। उसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति होगा। तो इस तरीके से मैं एक कंक्लूड कर दूं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आखिर जिस तरीके से अब आप हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, अधिष्ठाता महोदय, तो कोई बात ही नहीं। आखिर यूएसए के 3 गुना आबादी की तरफ देख रहा हूं तब से, कंक्लूड कर दे, लेकिन आप मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। मैं आप बंद कीजिए। गुना आबादी को हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दे रहे हैं 3 साल से। अगर आज हम लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं, उसकी सब्सिडी के लिए अगर हम 80,000 करोड़ ले रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में, तो इनको तो कहना चाहिए गरीब विरोधी है। निश्चित तौर पर उनके विरोधी जो कोविड में जिनको 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम हमारी सरकार कर रही है, आज उसको रोकने का काम कर रहे हैं। थैंक यू जी, प्लीज। No, now you please start. Sir, thank you very much for getting this opportunity to
participate in this discussion. Nothing will go on record. हाँ, बोलिए. Around 30 minutes. Thank you. Praises on this government, Jagadindika Palji, continued, and we heard about that. Sir, I am not commenting on that, but the real factor is the rural India, the people of our nation is very much worried about the policies and the activities of this government. All the praises, whatever he said, Please. is about कृपया माननीय सांसद जी को सुनिए. corporate groups and not been for the farmers and common people of this country. Sir, it is quite unfortunate to say that the budget 22-23 is indicating the changes in center's focus and priorities. Sir, it doesn't talk about government's early guarantee of doubling farmers' income within 5 years. The budget has purposefully excluded or subsumed some crucial schemes like interest subsidy, subsidy on fertilizers, etc., and many older ones have been renewed. Sir, it is understood from the budget documents. The total projected expenditure of the nation for 22-23, rupees 39.45 lakhs crores. Of this, only rupees 1.24 lakh crore is earmarked for agriculture sector, which is only 3.5 or 3.1%. Also, it is clear that the priority of agriculture goes down to 7th position after defense, consumer affairs, road transport, home affairs, railway and rural development. I have no doubt these areas are important, but agriculture sector should get more priority because a large volume of our population still depending on agriculture sector. Sir, since the inception of 17th Lok Sabha, I have been attempting to draw the attention of Union government on depressing trends in the price of agriculture products like natural rubber, cardamom, pepper, etc. It is quite unfortunate to say that these issues were not considered with adequate attention. Sir, what is the rubber price, market price nowadays? Only 140 rupees we are getting. At least 250 rupees we should get because we are not getting the production cost. Yeah, our rubber farmers are facing a crucial situation there. As per the Swaminathan formula, production cost plus 50% is very much necessary and we should get the minimum support price. And what is the price of cardamom? Nowadays we are getting only 800 rupees. At least 1,500 rupees we should get the MSP for cardamom and pepper also. This government, Union government, especially supporting the farmers through commodity boards. But after 2014, this government stopped all the incentives and the benefits, whatever distributed earlier became stopped. It is quite unfortunate. They are giving the budget allocation only for the salary distribution of their officials. They are not supporting the farmers. So our demand, the budget allocation for the commodity boards, especially rubber board, cardamom means spices board, and coffee, tea boards, the budget allocation should be enhanced. And also give some MSP plans or policies to these agricultural products. Government should announce it as agricultural products, sir. It is treating as commercial. It is the real thing. But it should be included in the CACP list, Commission for Agricultural Cost and Price. Otherwise, we can't announce the MSP. So our demand for announcing MSP, these products identified as agricultural and should include in the CACP. That is our main demand. And also, sir, the cattle farmers. I would like to say about our cattle farmers. Government should announce the subsidy for cattle feed. Otherwise, they can't purchase the cattle feed. So they are in crisis. Our government should support them. But not at all bothering about that. And our demand, cattle farmers can include in the Manrega. Now the time for revision of our Manrega jobs. Government should consider cattle farmers also, Honorable Minister is here, cattle farmers also included in the Manrega. Very unfortunate, I would say, Manrega, this government is treating us secondary. I'm sorry to say that, sir. A large volume of Manrega wages are pending from Kerala, from my district. Large volume of wages are in pending. It should be dispersed very immediately. It is a #1 poverty eradication program all over the world concerned. Manrega is our pride. Government should take it as very serious. And I'm coming to other points. Sir, our development works,
for railway and national highways. We are very much thankful for national highway development also, because very recently in my constituency, National Highway 85, Kochi Dhanushkodi, government awarded 910 crore rupees new project. I am very much thankful to honorable ministers, but my demand, we should consider the earlier announcements, that means earlier commitments, whatever this government produced. For in NH 85, Muachupudi and Kodamangalam bypass, it's a long pending demand. From 1994, we are waiting for that. And NHAI considered, but NHAI demanding 50% share of state government. But due to the financial crisis of state government not in a position to contribute that 50%. And my request, without Muachupudi and Kodamangalam bypass, NH 85's development not being completed, not complete. So that's why central government, Ministry of Road Transport, take it as a standalone work and complete it very fastly. And about our railway project, sir, Vande Bharat is coming. We are welcoming. But what about Angamali? Sir, 2 minutes I need. Angamali Sabari rail project. It started in 1997, 1998. But after 7 kilometers, the rest of the part is still in stagnation. We want to restart that. It is the time. Time has arrived because Kerala government already committed 50% share for the construction. But why this government is keeping delay? So our demand to Railway Ministry, Honorable Railway Minister, should consider very fastly. Idukki district is out of the railway map even now. It is only the hope. That's why, and apart from that, the people who are living that area, that project areas, peckmarked their land, and they can't pledge their land, they can't do nothing with their land. That's why they are in crisis. Government should take it in priority and restart, defreeze that Angamali Sabari railway project very immediately. And one more thing I would say about plantation labours here. Sir, I am coming from the district Idukki. A large volume of... Sir, 1 minute, I am concluding. Last point. Plantation workers, their living condition is very much pathetic. They have no housing facilities. Okay. Even drinking water from Pirimedu Taluk, more than 17 estates already been stopped their operations. So I urge upon the government to announce a tea workers package for Kerala, whatever government announced in Assam and Bengal. I don't know what is the condition of that package. But anyway, we needed a special package for tea garden workers there. Thank you, sir. सप्लीमेंट्री डिमांड्स के ऊपर आपने बोलने की मुझे इजाज़त दी, इसका मतलब ये है कि आप सप्लीमेंट्री डिमांड्स के ज़रिए आप सरकार से पैसा मांग रहे हैं सरकार चलाने के लिए। मैं एक सवाल संसद से मांग रहे हैं। मैं एक सवाल फाइनेंस मिनिस्टर साहब से करना चाहता हूं, क्या इस देश के अंदर गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए और धन्ना सेठों के लिए अलग अलग कानून है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इम्तियाज़ जलील 50 लाख रुपये का अगर लोन लेता है और वो लोन डिफ़ॉल्ट करता है तो बैंकों को ये इख्तियार है कि मेरा नाम, मेरे गारंटर का नाम, मैं जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा हूं उसका एडवर्टाइजमेंट अखबार के जरिए वो देकर मेरी प्रॉपर्टी सीज करते हैं और मुझे बदनाम करते हैं मैं 50 लाख रुपए का लोन लिया हूं। लेकिन अगर कोई किसी ने 5,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, किसी ने 50,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसको आप बड़ी आसानी के साथ हर रोज माफ करते जा रहे हैं, पिछले 4 सालों के अंदर आपने कितना पैसा राइट ऑफ किया है? और ये मैं नहीं बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये जवाब कल फाइनेंस मिनिस्टर ने क्वेश्चन आवर के अंदर बताया है। तो सुनिए, उसके अंदर पिछले 4 साल के अंदर कितना पैसा 8,48,186 करोड़ रुपीस का लोन राइट ऑफ किया गया है। और जब हम इनसे पूछ रहे हैं कि किसका पैसा ये आपने राइट ऑफ किए हैं, तो जवाब सुनिएगा अध्यक्ष महोदय, आपको भी हैरानी होगी जो जवाब फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने दिए हैं। उसमें लिखा है, RBI has informed that under the provisions of Section 45E of the Reserve Bank of India Act 1934, RBI is prohibited from disclosing borrower-wise credit information. RBI ये आपको कह रहा है कि हम आपको डिटेल नहीं दे सकते हैं कि कौन बड़े धन्ना सेठों ने पैसा लिया है, ये देश को आप नहीं बताएंगे।
आखिर ये पैसा 8,48,186 करोड़ रुपीस आपने राइट ऑफ किए हैं। इसका जवाब आप दीजिएगा कि मेरे लिए कानून अलग कैसा हो सकता है, और जिन्होंने धन्ना सेठों ने पैसा लेकर कोई लंदन भाग गया है, कोई सिंगापुर भाग गया है, उनका नाम भी आरबीआई नहीं बताएगी हमारे को। दूसरा ये है कि मैं अभी सुन रहा था जगदम्बिका पाल साहब को। पाल साहब सुनिए, आप किसानों के बारे में कह रहे थे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, देश का एक छोटा सा एक शहर है, उस क्षेत्र के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा एक छोटा सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर जनवरी से लेकर नवंबर 2022 तक महज 11 महीनों के अंदर 940 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मराठवाड़ा एक जो देश का एक छोटा सा हिस्सा है, कहीं ना कहीं आपकी कुछ नीतियां गलत हो रही है। अध्यक्ष महोदय, कहीं ना कहीं आपकी नीतियां गलत हो रही है, वरना इन किसानों की मौत को आपने सिर्फ एक आंकड़ा बनाकर रख दिए हैं। 940 किसान अगर सिर्फ एक क्षेत्र से मर रहे हैं और ये कहते हैं कि नहीं हमने किसानों के लिए इतना किया है, तो क्या वजह है कि आज किसान अपनी जान दे रहा है? आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस स्कीम के अंडर में आपने 10 करोड़ लोगों को दे दिए हैं। आप ये आंकड़ा बताइए, कितने ऐसे गरीब लोग जो पहले हम भी मानते हैं, हम भी खुश हुए थे, हमने भी स्वागत किए थे कि ये लोग जब अलग अलग तरीके से गैस की जगह पहले लकड़ी के ऊपर, कोयले के ऊपर है तो अपना खाना बनाते थे, आपने गैस दिए, लेकिन कितने लोग अब दोबारा रिफिल करने के लिए जाते हैं? क्या यह सच्चाई नहीं है कि पिछले 7 सालों के अंदर, 7 साल पहले गैस के सिलेंडर का रेट 450 रुपये था, आज आपने उसको 1080 रुपये किए हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जितना पैसा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के ऊपर, वही पैसा अगर आप दे देंगे तो शायद इन गरीबों को फायदा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, आज बेरोजगार, ये आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूं, कोई मनगढ़ंत आंकड़े नहीं बता रहा हूं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनके आंकड़े आए हैं। तो सुनिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया अभी 8% के ऊपर आया है। 3 महीने का सबसे ज्यादा का आंकड़ा जो है वो अभी आया है। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है आपके पास भी एक EPS 95 की एक स्कीम है। बुजुर्ग लोग, ऐसे बूढ़े लोग, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को यह बताना चाहता हूं कि इनके पास भी सर 65 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन कितनी दी जा रही है? 250 रुपये, 500 रुपये। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैं इसलिए मुखातिब हो रहा हूं कि ये मेरे शहर से आते हैं। अगर देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं आपको कहता हूं, लीजिए एक नाम भी नोट करिएगा, सुलोचना गडप्पा, 70 साल की महिला है, औरंगाबाद में रहती है। सुलोचना गडप्पा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब नोट करिए, आप औरंगाबाद शहर से ही आते हैं। उसको कितनी पेंशन दी जाती है? 250 रुपये। 70 साल की, कोई बच्चा नहीं है, और 250 रुपये के अंदर वो अपना घर का बसेरा करेगी। मेरा ये कहना है कि पेंशन स्कीम के अंदर आपके पास कितना पैसा है, वो पैसे से EPS 95 के पिछले कई सालों से, और हर MP को इन लोगों ने खून से अपना लेटर लिखकर आपको निवेदन दिया है कि हमारे लिए कुछ तो भी करिएगा करके, आपके पास भी दिए हैं, आपकी भी फोटो छपी थी उसमें। दूसरा ये है कि आप EMI के रेट्स तो बढ़ा रहे हैं, होम लोन का रेट बढ़ गया, व्हीकल लोन का रेट बढ़ गया, आप FD का रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या वजह है कि आप ये रेट्स के अंदर तो बड़ी आसानी के साथ फैसला ले लेते हैं, लेकिन FD का रेट जब बढ़ाने की बात आती है तो आप इसके अंदर कोई फैसला नहीं लेते हैं। आप एजुकेशन के लिए पैसा मांग रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर स्कूल में टीचर नहीं, कॉलेज में लेक्चरर नहीं, और अगर अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं, तो वो इमारतें किसी काम की नहीं है। अगर वहां पर अगर आपके पास फैकल्टीज नहीं है, और ये भी मैं मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूं, आप ही ने जवाब दिया है, सरकार ने लिखित में जवाब दिया है, यूनिवर्सिटीज के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर्स कितनी, अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर्स की कितनी वैकेंसी है? 6180 प्रोफेसर्स की वैकेंसीज है। IITs और IIMs, बहुत सारे बीजेपी के हमारे सदस्यों ने कहा कि देखिए हमारे राज्य के अंदर हम कितने IITs और IIMs बना रहे हैं। इमारत बनाने से तालीम नहीं पहुंचाई जा सकती है, उसके लिए आपको लेक्चरर्स की जरूरत रहेगी। IITs के अंदर 4502 लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स की वैकेंसीज है। IIMs के अंदर 493 वैकेंसीज है। दूसरा ये है, एक बहुत अहम सवाल,
2015 के अंदर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, हमने स्वागत किया, पूरे देश ने स्वागत किया कि हर बेघर को घर मिलने वाला है। और प्रधानमंत्री साहब का एक भाषण भी है जिसमें उन्होंने खुद ने कहा है, यूट्यूब के ऊपर आप भी देख सकते हैं, कि 2022 तक हम हर बेघर को घर देंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब औरंगाबाद से है, 50,000 लोगों ने अप्लाई किया है पिछले 6 साल से। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, एक सादा ईंट तक नहीं पड़ा है। बिल्डिंग बनाने की तो बात छोड़िएगा आप, सादा ईंट नहीं पड़ा। अध्यक्ष महोदय सिर्फ एक मिनट, एक सादी ईंट तक नहीं पड़ी है। दूसरा ये है अध्यक्ष महोदय, जाते जाते इस मुल्क को, हमने कल के दिन फाइनेंस मिनिस्टर मैडम कह रहे थे कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अगर आप एक इतने बड़े माइनॉरिटी के तबके को अगर आप पीछे रखेंगे और आप ये उम्मीद करेंगे कि देश चलेगा आगे, हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप हमारी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दे रहे हैं, आप हमारी मौलाना आजाद रिसर्च फेलोशिप आप बंद कर दे रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अगर माइनॉरिटीज को हम पीछे रखेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। देश को हम भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी का साथ और सभी के विकास के बारे में। आज आपने अनुपूरक बजट पर आपने मौका दिया है बोलने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग इस चर्चे में लगे हैं कि अनुपूरक बजट पर क्या बोलना चाहिए। मैं तो जानना चाहता हूं सरकार से कि विगत 8 साल से आप सत्ता में आए हैं, तो सत्ता में आने से पहले आपने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा हर साल। उसके बारे में मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। 3 महीना नहीं, हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। जो काम हुआ है देश में, जो लोगों के बीच में वादा किया गया है, उस पर बात करना चाहते हैं। आप अपनी बात कहिए जी। हम लोग हाउस में आए हैं जनता के बदौलत जी। और आने वाला 2024 होगा सर, फिर हम लोग को जनता से वोट लेना है, तो हम लोग कितना झूठ बोलेंगे? अब जाएंगे जनता को तो हम बोलेंगे ना भाई कि 2-2 करोड़ सालाना। अब 10 साल का हिसाब आप दीजिए। माननीय मंत्री जी, बेरोजगार लोगों के लिए आपने केंद्रीय जितने भी संस्थान है, आपको चाहिए था कि सभी से डिमांड करना कि कहाँ वैकेंसी खाली है। हमारे बच्चे बेरोजगार होकर दिल्ली, पटना, दौलताबाद जा रहे हैं, उसके लिए ईमानदारी से काम होनी चाहिए। सभापति महोदय, उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं प्राइवेट नहीं करूंगा, रेलवे को प्राइवेट नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री जी का भाषण है, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज रेलवे को भी प्राइवेट किया जा रहा है, प्लेटफार्म बेचा जा रहा है, टेलीफोन को प्राइवेट किया जा रहा है। उतना ही नहीं, मेरे संसदीय क्षेत्र में आयुध फैक्ट्री था, अब आयुध फैक्ट्री को भी प्राइवेट कर दिया जा रहा है। सवाल है माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो वादे किए, तो यह अनुपूरक बजट तो उसी हिसाब से लाना चाहिए था कि हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार कैसे दे, जो हमारे देश की संपत्ति है उसको बचा के रखना है या नहीं कि बेच देना है। सभापति महोदय, आज हमारे देश के सामने भारतीय रुपया 84 रुपया और $1 का दाम है। उस समय जब सरकार आपकी बनी थी, उस समय 64 रुपया। आज देख लीजिए जो हालात है महंगाई का। आपने कहा था कि महंगाई पर भी हम रोक लगाएंगे। जब आपने उजाला योजना चलाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पूरे दुनिया लोगों ने तारीफ किया कि हर गरीब के पास उजाला योजना चला गया। आप देख लीजिए कि उजाला योजना में आज गरीब लोग कितने गैस भरवा रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में गैस एजेंसियां लिए हैं सभापति महोदय, उनके पास लोग गैस भराने नहीं जा रहे हैं। उसका सर्वे होना चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन गरीबों को आपने सालाना महीनेवारी देख लीजिए कि उस समय 460 रुपया गैस था, तो लोगों ने 1 महीना 2 महीना भराया। आज गैस का कीमत
1200 रुपये तक चला गया। आप आज गरीब के पास गैस नहीं है, फिर गरीब लोग देख रहे हैं कि लकड़ियां चुन चुन कर खाना बना रहे हैं, तार के पेड़ से जलावन निकाल रहे हैं, जो सूखे पेड़ हैं उससे जलावन निकाल के घर में खाना बना, तो उनका आंख आज भी खराब हो रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी या मंत्री जी जब जवाब देंगे तो महंगाई पर भी लोगों को जवाब देश के सामने रखना पड़ेगा। 2024 है, सिर्फ सबके लिए है। हम लोग का तो बचाव तभी होगा जब माननीय मंत्री जी जवाब में कहेंगे कि हम महंगाई को रोकेंगे। आज सभापति महोदय, हम समझते हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य है। बिहार नहीं, बहुत है, उड़ीसा है, कई राज्य हैं। आपने कहा था कि देश का विकास दर हम बढ़ाएंगे, और देश का विकास तभी हो सकता है जब पिछड़े राज्यों को हम आगे ले जाना चाहते हैं। तो पिछड़े राज्यों के लिए आपने कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया, लेकिन बिहार लगातार मांग कर रही है विशेष राज्य के दर्जे का, लेकिन आपने अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जो पिछड़े राज्य हैं, जिस तरीके आपने पहले राज्यों को आपने पिछड़ा राज्य के विशेष राज्य का जहाँ जहाँ दर्जा दिया, उसी तरीके से बिहार में भी पिछड़े राज्य विशेष राज्य का दर्जा देकर जहाँ की औद्योगिकरण बढ़े, इसके लिए आप काम करिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर गरीब को पक्का मकान देने का भी आपने वादा किया था कि 2022 तक हर गरीब के छत का इंतजाम मैं करूँगा। लेकिन आज देश दुनिया हम लोग घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, गरीब के पास आज भी गरीबी वही हालत है। आज भी इंदिरा आवास की जो बनना चाहिए था, आज गरीबों को बीच नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास तो मैंने आपको आज प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं जो बात कह रहा हूं सर, जी प्रधानमंत्री जी ने जो बात कहा था उसी को कह रहा हूं कि बजट में इसी यही लाना चाहिए था। आज गरीबों के पास मकान नहीं है, पक्का मकान बनवाने का भी इंतजाम सरकार को करना चाहिए। उतना ही नहीं सभापति महोदय, आज किसानों को खाद नहीं गांव में मिल रहा है। आज 37% बिहार से मैं आता हूं, बिहार में अभी यूरिया मात्र 37% सप्लाई हो रहा है। आज किसान परेशान है। आप कहते हैं कि राज्य सरकार जमाखोरी करा रही है, लोग प्रचार करा रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि आज पूरे देश में कितने राज्यों को आपने किस रूप में आपने यूरिया का आवंटन किया, ये सरकार को बताना चाहिए। लगातार किसान परेशान है। सभापति महोदय, यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि डिमांड्स ऑन ग्रांट, सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट्स को तो हमें पास करना ही है, लेकिन इसकी स्क्रूटनी करना भी हमारा दायित्व बनता है। 3,25,000 करोड़ से ऊपर की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो हैं, कैश फ्लो हमें अंदर इसमें देना है। मैं आपसे के माध्यम से, माननीय वित्त मंत्री जी शायद इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं, एमओएस हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वो जवाब देंगे तो इस बात को भी ध्यान में रख कर के जवाब देंगे। यहाँ कल से बहुत चर्चा हो रही कि साहब माननीय सदस्य, ये गैस सब्सिडी तेल कंपनियों को सरकार सब्सिडी दे रही है, इसलिए ये खर्चा जो है सप्लीमेंट्री डिमांड्स लाना जरूरी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि क्या ये सही है कि जो रशिया से क्रूड ऑयल हम लोग सब्सिडाइज्ड रेट्स पर इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट
32% सब्सिडाइज्ड रेट पर रशिया से क्रूड इंपोर्ट हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जो भारत सरकार की जो ऑयल कंपनीज हैं वो डायरेक्ट इंपोर्ट क्यों नहीं कर रही? क्या यह सच नहीं है कि आपके सरकार के जो खास जिन पर आशीर्वाद रहता है 2-3 कॉरपोरेट्स पर, वो लोग सस्ते दाम पर रशिया यूक्रेन वॉर का फायदा उठा करके रशिया से क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं 32% सब्सिडाइज्ड रेट पे, और फिर उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन वगैरह में। तो ये जो विंडफॉल गेन जो चंद खासतौर से रिलायंस और एसआर की नायरा 2 कंपनीज का कितना बड़ा विंडफॉल गेन हो रहा है, इस पर सरकार जो है क्या कहना चाहेगी? क्यों नहीं सरकार की तेल कंपनियां डायरेक्ट ये काम करती, ये बिजनेस करके, और हमारे जो गरीब जनता जो डीजल पेट्रोल 100 रुपए लीटर पर खरीद रही है, उसका फायदा अगर उसको पहुंचे तो मैं समझता हूं कि 50 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल आम जनता को मिल सकता है। मैं जो है, अब मुझे पता नहीं किसकी कंपनी है, शायद जिसके लिए आप पहले काम करते थे एसआर की होगी, मुझे नहीं मालूम किसकी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि हम लोग यहां पर इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। इस सरकार ने, अभी बात हुई इकोनॉमिक पैरालाइसिस की, आज कौन सा इकोनॉमिक पैरालाइसिस नहीं है? आज तो गब्बर सिंह टेरर से सारे छोटे मोटे व्यापारी परेशान हैं। आप भी आते हैं सर, पिछले 3 दिन पहले मेरठ में भी वही हाल था, अमरोहा में भी वही था, बरेली में भी वही था। जीएसटी के नाम पर रेड जो है, किसी बड़े उद्योगपति घरानों पर रेड नहीं करती है सरकार, ऐसे लोगों पर नहीं करती जिनका मैं नाम ले रहा हूं, उनको तो जो एग्जेम्पशन दे देती है। लेकिन जो बेचारा ठेले पर पकौड़ी तल के बेच रहा है, आपने नौजवानों को रोजगार तो दिया नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यह भी रोजगार है कि स्टूडियो के बाहर जो पकौड़ी तलने का पकौड़े तलेगा, वो भी तो एक रोजगार है। लेकिन आज तो हालत ये हो गई, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पकौड़े तल रहे ठेले पे लगा करके जीएसटी की रेड उन पर हो रही है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि डिमोनेटाइजेशन आपने किया कि साहब टेरर खत्म करेंगे, ब्लैक मनी जो है कैश खत्म करेंगे, नकली नोट खत्म करेंगे। मैं समझता हूं डेटा सबके पास है, नकली नोटों का सर्कुलेशन उस वक्त से ज्यादा हो गया, जो कैश करेंसी प्रिंट थी आज 2 गुना से ज्यादा हो गई। तो आपकी जो पॉलिसीज हैं उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगी तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि ये मुझे बताएंगे। सभापति महोदय, मेरा समय है, मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, इस देश का विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन ये हो क्या रहा है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप तक खत्म कर दिया आपने। जो SC ST OBC माइनॉरिटीज के बच्चे थे, वो आप चाहते हैं कि वो स्कूल ना जाएं, वो पढ़े ना। जो मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप थी वो आपने खत्म कर दी। आप कर क्या रहे हैं? सच्चर कमेटी ने इस देश में बताया, डायग्नोज किया कि किस तरीके से इस देश के अंदर माइनॉरिटीज के बच्चे जो हैं, पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटीज के बच्चे कितने पिछड़े हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने उसका इलाज किया। सभापति महोदय, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने उसका इलाज दिया, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि साहब रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने तो सिर्फ जो है 4 दीवारी में बैठ करके ये रिपोर्ट तैयार कर दी। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, हम तो सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय की बात करने वाली पार्टी से हैं, लेकिन आपने जो 10% इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर रिजर्वेशन दिया, उसका सर्वे कहां हुआ था? वो कौन सा कमीशन था
जिसने सर्वे दिया उनको आपने रिजर्वेशन दिया। मैं सभापति महोदय, मैं इन्हीं बात के साथ मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स है उनको बहाल किया जाए। जो SC ST माइनॉरिटीज के OBC के बच्चों को जो पढ़ाई से रोकने की कोशिश की जा रही है, मैं माननीय वित्त मंत्री से चाहूंगा कि वो उसको बहाल करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you, sir. So I speak here on the demands for grants. सर जगदम्बिका पाल जी शायद अभी निकल गए, उन्होंने 3-4 चीज़ें बोली, मैं थोड़ी संक्षेप में बोलना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि देश में बहुत अच्छा काम हुआ, कोविड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की और राज्य ने और सारे सांसदों ने आभार मानने चाहिए केंद्र सरकार की बहुत मदद की। अच्छी बात है कि ये ज़रूर, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। उन्होंने जब राज्य का हिसाब किया, और सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स हर राज्य के बजट में आता है, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि प्लान एक होता है थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, तो ये सब जानते हैं, बहुत सालों से हम यहाँ हैं, तो सप्लीमेंट्री डिमांड तो इसीलिए ये चीज़ कोई नई नहीं है, ना स्टेट के बजट में होती है ना देश के बजट में होती है। मैं 3-4 छोटी चीज़ें आपको बनाना चाहती हूँ सर, कि उन्होंने कहा कि राज्यों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो किया वो केंद्र सरकार ने किया। सही, आपने वो, आप तो माई बाप सरकार है, देश का सबसे बड़ा बजट आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन एक चीज़ देखनी चाहिए, एक सक्सेस स्टोरी मैं महाराष्ट्र की बताना चाहती हूँ, जहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तब जो MP फंड था सर, वो इस डिपार्टमेंट ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने विड्रॉ किया था 2.5 साल के लिए। अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है। आठवतं आपल्याला आपण खासदारांचा फंड बंद केला होता, लेकिन महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर ने कोविड के टाइम पे भी 1, 2, 3 नहीं, हर पार्टी के हर MLA को 5 करोड़ रुपया का कभी भी फंड बंद नहीं किया था। तो दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी, मैं सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी की तरफ बता रही हूँ। दूसरी, वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारे सब बोले, वैक्सीनेशन दिया सबने, अच्छी बात है, लेकिन वो बनाया सरकार ने नहीं बनाया था। वो एक पूना डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से मैं आती हूँ चुन के सर, वहाँ सीरम इंस्टीट्यूट नाम की संस्था है, उन्होंने बनाया, बांटा ज़रूर आपने, लेकिन स्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर ने। महाराष्ट्र में BMC को सबसे अच्छा अवार्ड मिला कोविड में काम करने के लिए। किशोरीताई पेडनेकर और चहल जी दोनों ने चेस द वायरस जो प्रोग्राम बनाया, जिसमें भारत ने भी उसकी बहुत सराहना की, लेकिन भारत के बाहर भी एक अच्छा मॉडल तरीके से उन्होंने बनाया। और बजट का सबसे अच्छा मनी मैनेजमेंट, ये नहीं कह रही मैं, कराड़ साहब कह रहे हैं, उनका ही कोट कर रही हूँ, कि सबसे अच्छा मनी मैनेजमेंट अगर किसी राज्य ने में किया हो कोविड के काल में तो वो महाराष्ट्र है। ये केंद्र सरकार का डेटा कह रही है सर, मैं नहीं कह रही हूँ। तो सबने मिलजुल के किया है, और ऐसे टाइम में जब कोई करता है तो सबका एफर्ट होता है। दैट्स द ओनली लिमिटेड पॉइंट आई वाज ब्रिंगिंग। सर दूसरी एक बात, काफ़ी लोगों ने, इम्तियाज़ भाई ने अभी EPS के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि पिछले हफ्ते एक न्यूज़पेपर में, वर्तमान पत्र में एक न्यूज़ आई थी सर, कि नॉन परफॉर्मिंग NPA 10 लाख करोड़ 10 लाख कोटी रुपएचे बैंकों का उन्हें कर्ज ऋण माफ़ कर दिया, ऐसा पेपर में आया था। आई एम नॉट अ फाइनेंस एक्सपर्ट, मैं जो पेपर में पढ़ती हूँ समझ लेती हूँ कि सच है। और NPA का जो उसमें आर्टिकल में लिखा था कि 87% इज़ द हेयर कट, ओनली 15% वॉज रिकवर्ड, इज़ व्हाट द न्यूज़ आइटम सेड अबाउट NPAs इन बैंक्स। अब आप सोचिए सर, इम्तियाज़ भाई कह रहे थे कि पेंशन का पैसा दिया जाए किसी महिलाओं को, इंश्योरेंस के बारे में हर किसान बोलते हैं कि फसल बीमा योजना में पैसा दिया जाए, किसानों का सुसाइड के बारे में भी अभी इम्तियाज़ भाई बोल रहे थे, किसानों की आत्महत्या हो रही है। अगर आप 10 लाख करोड़ रुपया, उसमें कितना शून्य है वो भी मुझे पता नहीं सर, 10 लाख करोड़ रुपया अगर आप बैंक करते हैं, और फिर वो लेगेसी का इशू मत उठाइए कराड़ साहब, फिर बोलेंगे ये आपका लेगेसी इशू है। लेगेसी अभी 8 साल आपकी सरकार होगी, दीज आर नॉट लेगेसी इशूज़, आप ठीक कर सकते थे, 8 साल बहुत टाइम होता है ठीक करने के लिए इकोनॉमी, तो ये लेगेसी इशूज़ में मत फंसाइए हमको। तो फार्मर्स लोन हो वो आप माफ़ कर सकते थे, आप अच्छा फसल बीमा योजना में पैसा दे सकते, वो नहीं आप करते। जो इम्तियाज़ भाई बोल रहे थे EPS का, पेंशनर्स का पैसा ही नहीं दिखते, लेकिन 10 लाख करोड़ रुपया
आपने ये बैंकों को माफ़ किया, वो किसका किया वो तो नहीं हम सबको पता, किसका भी किया होगा, लेकिन आप उनका भी कर सकते तो इनका भी करिए, इतनी सिर्फ मेरी विनती है, बाकी मेरी कुछ मांग नहीं है। दूसरी एक स्कीम है, इतना पैसा आपने मांगा है सर, वयोश्री नाम की बहुत अच्छी स्कीम है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, बहुत अच्छी, इस सरकार का मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि बहुत अच्छी स्कीम आपने बनाई। लेकिन मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आती हूँ सर, इट्स द हाईएस्ट परफॉर्मिंग। पिछले साल भी बारामती लोकसभा मतदार संघ में वयोश्री योजना वाज नंबर 1। आई टॉप्ड द कंट्री एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि आपने इतनी अच्छी स्कीम बनाई और हमने अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। और उसमें जो शोषित है, पीड़ित है, जो दिव्यांग है, सीनियर सिटीजन है, उसको मदद मिलती है। इस साल भी सबसे ज़्यादा हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्लीमेंट हुई, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बेनिफिशियरी मिला। और जब भी सोशल डिपार्टमेंट को हम फॉलो अप करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्यों नहीं सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने पैसा मांगा। आपने फर्टिलाइजर्स के मांगा, अच्छी बात है, आपने फ्यूल के लिए मांगा, अच्छी बात है, आपने किन किन चीज़ों के लिए मांगा है उसके लिए अच्छी बात है, मनरेगा के लिए, फूड सब्सिडी लिए। फिर सोशल जस्टिस, जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जिसको दिव्यांग है, जो सीनियर सिटीजन्स है, उसके लिए आप पैसा क्यों नहीं मांग रहे? क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट से बताया जाता है सर कि वयोश्री यू आर अ हाई परफॉर्मर, अच्छी बात है, लेकिन आज तक ना एक हियरिंग एड आया है, ना एक चश्मा आया है, ना एक कठी आई, ना कुछ है। सर 2 मिनट्स, जस्ट 2 वेरी स्मॉल पॉइंट। तो ये वयोश्री, एक और पॉइंट सर, छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी मैं बोल दूंगी सर। सब ने कल मैंने थोड़ा सा डिबेट मिस किया सर, लेकिन सब निशिकांत जी भी यहाँ है, कल उसके बाद उनका मैंने देखा यूट्यूब पे भाषण, बहुत अच्छा बोले, लेकिन उन्होंने एक चीज़ ऐसी कही कल कि ये डॉलर का जो है ना, उसमें चिंता ना करे, क्योंकि डॉलर भी 80-85 कितना भी बढ़े कोई बात नहीं, बाकी करेंसी से हम लोग बहुत अच्छे हैं, तो उसमें बड़ी बात है। ये बहुत अच्छा बोले, वो सही है बात, बाकी सब करेंसी से हम अच्छा है। लेकिन एक दो छोटा सा मैं उनको सिर्फ याद दिलाना चाहती हूँ इस सरकार को। मैं सुषमा जी को कोट करूँगी, हमारी सबकी वरिष्ठ नेता थी, अगर अगली पार्टी में भी होगी तो हमारी भी नेता थी, और सुषमा जी ने का एक कोट है, मैंने खुद सुना था सर यहाँ बैठ के, उन्होंने कहा कि करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, जैसे जैसे करेंसी गिरती है वैसे वैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। ये सुषमा जी का कोट है सर। और एक छोटा सा पॉइंट मैं कराट जी से पूछना चाहती हूँ कि बाकी सब का हमारा क्या है, डॉलर का रिश्ता ज़्यादा क्यों बनता है? क्योंकि जो ट्रेडिंग होता है वो सिर्फ डॉलर में होता है, वो ना पाउंड में होता है, ना बांग्लादेश की पैसे से होता है, ना श्रीलंका करेंसी से होता है। सो जब डॉलर गिरता, डॉलर और हमारा उसके सामने पैसा गिरता है, ऑल आर ट्रांजैक्शन आर सर इन डॉलर्स। आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस लाइक ऑल ऑफ योर, बट so much little knowledge I have that why does inflation and price rise happen is purely because of dollar prices. So dollar to dollar has to be compared. You cannot compare other world currencies to our dollar value, sir. Other one small, so this is a clarification I asked, that what is the government stand? Demonetization के बारे में सबने बोला, I won't repeat it, but I just have one question to ask you, a pointed question. कि demonetization, wrong or right or wrong, I'm not getting into the merits, but how much black money was collected by this government is my repeated point. And one last small point, sir, कि ये rate hike आप जब कह रहे हैं, when you're talking about a rate hike, and the economy is doing very well. आज ही newspaper में आया है that India's industrial production has contracted 4 to 5%. If industrial growth is not going, unemployment is going up, you are saying we are a great, the whole world is going into recession. You are saying how will we, if the dollar price is an issue, today exports will slow down today. So how is this a very good economy? And we are no more an insulated economy. You want to be the top 5. How are we insulated? So how are you saying? Do you have a roadmap? The world is going into a world economy crisis. In a crisis, how is India going to be protected? If you could kindly give me clarification on this. Sir, our 3-4 PLI scheme के 2-4 मुद्दे हैं, but I won't see it, but at least if you could tell me with what did you achieve in this fuel also, what have you done? Because fuel, you are saying the subsidies are going down, but how will the subsidies go if the dollar is there? So the whole buck stops at the dollar, which you are taking so lightly, and we were very pained when the Honorable Finance Minister said कि we are what, jealous or insecure. Why should we be jealous or insecure? We are happy.
आप देश अच्छा चलेगा तो हमारा क्षेत्र भी अच्छा चलेगा, राज्य अच्छा चलेगा. So I request you to clarify the stand on the dollar because I think you're misleading the nation by putting up an economic situation which is not true. So please do not mislead. इजाज़त देने के लिए बहुत शुक्रिया जनाब. जब भी ये मौका आता है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का तो ज़िमनी जब मुतालबात किए जाते हैं तो एक खुद एहतसाबी का अमल शुरू ज़रूरी बन जाता है. तो जो मुल्क की मईशत है हर सूरत में उसमें एक चैलेंज है. कोई भी इंडिकेटर जो है मईशत का, सही मईशत का, मजबूत मईशत का, वो सारा ये दिखाता है कि मईशत कोई अच्छी पोजीशन में नहीं है. जनाब अगर जो सोशल सेक्टर में कुछ कामयाबियाँ हुई हैं लेकिन मजमूई तौर पर जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात है, जहाँ पर जनाब कारोबार की बात है, कीमतों की बात है, तो कोई अच्छा खबर हमें नहीं मिलती है जो मुल्क की मईशत है उसके बारे में. जनाब जम्मू कश्मीर की बात जब करें तो 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन ख़त्म की गई और इसको एक 5000 साल पुरानी रियासत को एक तकसीम किया गया तो हमने उसी वक्त ये मुतनब्बे किया था कि जो कदम आप उठा रहे हैं सही नहीं उठा रहे हैं और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है. और वक्त ने वही साबित किया. हमें नॉर्मलसी का वादा दिया गया था, हमें कहा गया था कि खुशहाली के दिन आएंगे, एक नया कश्मीर होगा और आजकल हम देख रहे हैं कश्मीर की क्या पोजीशन. जब तक सियासी पहलुओं पर आ जाएंगे, जब आज भी तशद्दुद के वाक़ात हो रहे हैं, हर दिन किसी से किसी तशद्दुद की इत्तला हमें मिलती है. जब इस वक्त भी कई सौ नौजवान जम्मू कश्मीर से दूर जेलों में, डिस्ट्रिक्ट बरेली में, अम्बेडकर नगर में, आगरा में, जबकि AK रॉय में वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कहा कि जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो उसको वहाँ से दूर नहीं रखा जाता. इतना ही नहीं, जो बिल्कुल मजहबी स्कॉलर्स हैं, मौलाना रशीद दाऊदी हैं, जनाब मुश्ताक साहब वीरी हैं, तो वो तक पाबंद सलासल है. तो ये बात यह है कि देखिए किसी हम वाइट टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं जब सियासत है और मईशत का एक दूसरे का चोरी दामन का साथ है. जनाब वो खा भी रहा. इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई. आप देखिए जनाब अब क्या असली आंकुर पर आ जाइए. अब जनाब वही कहूँगा ना जनाब, मुझे इजाज़त दीजिए जनाब जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर में मुल्क में सबसे ज़्यादा है. तो 20% के आसपास इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट कश्मीर में. तो जनाब एजुकेशन तो नाम की है. जनाब 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई. आप हैरान रह गए कि साउथ कैंपस में सिर्फ 6 डिपार्टमेंट्स है और 16 और जनाब ये अभी दिल्ली के जख्म ये सहला रहे हैं. तो अब जनाब 6 डिपार्टमेंट्स है और 16 खुलती फैकल्टी है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी एजुकेशन जनाब कहीं है ही नहीं. जनाब जहाँ तक एम्स है जम्मू में अगर जो वहाँ पर स्टूडेंट्स लाए गए हैं लेकिन कश्मीर में कहीं और स्टूडेंट्स है और कहीं और एम्स बन रहा है. तो जनाब अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर की बात की कोई 1 लाख के करीब डेली वेजर्स, सियासी वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, हॉस्टल डेवलपमेंट फंड वर्कर्स इस वक्त अपनी तनख्वाहों का इंतजार कर रहे हैं, रेगुलराइजेशन का इंतजार कर रहे हैं. और ख़ासकर जनाब जो ये और आप जम्मू कश्मीर बैंक की बात देखिए, एक छोटा सा बैंक है, 2054 करोड़ रुपए उन्होंने माफ़ किए. तो किसके माफ़ किए, कैसे माफ़ किए, तो ये इसका कोई है ही नहीं. तो ये इंडिकेटर्स हैं जो हमारी मईशत के इंडिकेटर्स हैं जम्मू कश्मीर की. जब मुल्क की तुलना करेंगे तो मुल्क में है ही है जो मैंने कहा वो चुनौतियाँ. ये जम्मू कश्मीर की बात जनाब है. सेब जनाब जो रीढ़ की हड्डी है, आपसे पहले भी मैंने गुजारिश की, तो हज़ारों जो सड़क है, हज़ारों ट्रक्स जो हैं वो वही की वही रही और जनाब जो सही वही सड़ गया. और अब दूसरा मामला ये शुरू हो गया कि अब जनाब भाव ही नहीं है. अब जनाब जो हमारी पैकेजिंग है वो पैसे नहीं आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे नहीं आ रहे हैं. तो जनाब सैफरन हमारा था, आप भी जानते हैं, तो सैफरन की 20% सैफरन की पैदावार गिर गई है क्योंकि पोल्यूशन पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है. जनाब पोल्यूशन से की वजह से जो क्लाइमेट चेंज के जो मामले हैं वो उससे फसल तबाह हो रही है तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा है क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस है. आप देखिए जनाब 2034 का हमारा एक मास्टर प्लान है, 6 महीने से उस पर बैठा जा रहा है, क्या इसमें परिवर्तन किया जाए या नहीं किया, कोई बात ही नहीं कर रहा है. जनाब जो भी मामले हैं उन मामलों पर कोई. अब जनाब कल ही जनाब मैंने आपसे गुजारिश की, आपकी इजाज़त से मैंने यहाँ मामला उठाया जनाब हेपेटाइटिस बी का. जनाब कोई सिर्फ 40% को मिल रहा है जनाब जो नल से जल है, जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है. वो तो बड़ा एक एम्बिशियस ड्रीम था प्राइम मिनिस्टर का. 40% से कम आबादी को मिल रहा है जनाब आज की तारीख में और उसी वजह से हेपेटाइटिस की बात हुई. तो अब जनाब हेल्थ केयर की बात देख लीजिए. जनाब
सारे 1 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ एक पेट स्कैन है। मैंने गुजारिश की थी कि साउथ कश्मीर में वो मुस्तकम करने के लिए कि एक पेट स्कैन लगाइए। सारे जम्मू कश्मीर में एक इंस्टीट्यूट है जिस पर निर्भर है लद्दाख का भी और कश्मीर का भी, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर। और जनाब वहाँ पर जो हेल्थ केयर की और उसके बगैर अंतना की जनाब, इसके अलावा जनाब तो जनाब जो जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर बनाने की बात है वो तो है ही नहीं कहीं पर। कोई इन्वेस्टमेंट मुझे कहिएगा, कोई अगर वित्त मंत्री हमें ये निशानदेही करेंगे ये इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में हो गई है, उसकी यहाँ पर निशानदेही कहे तो हम कहेंगे ये जनरेट हो गया, वो तो है ही नहीं। हर जगह बेइत्मीनानी है जनाब, जम्मू में बेइत्मीनानी है। अब जनाब CSR का कोई मतलब ही नहीं है, CSR कहाँ लग रहा है, और जनाब जो मिनरल डेवलपमेंट फंड है उसका कोई है ही नहीं, कोई पता ही नहीं। जम्मू में जनाब बेइत्मीनानी है, हर जगह बेइत्मीनानी है जनाब। और तब तक ये नहीं होगा, मैं कहूँगा, मैं शुभ चिंतक के तरीके से बोलूँगा, मैं कोई विरोध में नहीं कह रहा हूँ, तब तक कुछ नहीं होगा जनाब जब तक कि आप सियासी हुकूक जम्मू कश्मीर को बहाल नहीं करेंगे, अपना अंडू नहीं करेंगे अपने डिसीजन जो आपने 5 अगस्त के किए। जी थैंक यू सर। एक सेकंड प्लीज जी, तुरंत समाप्त कीजिए। तुरंत सेंटेंसेस जनाब। एक अच्छी बात हुई जनाब, हमारे जो लॉ मिनिस्टर है वो उन्होंने कहा कि नहीं 5 अगस्त का सब सही है, ठीक था, लेकिन वो अरुणाचल से, क्या वो अरुणाचल के बारे में भी यही कहे कि ILP खत्म कीजिए, वहाँ का जो खुसूसी पोजीशन है वो खत्म कीजिए? वो तो होगा नहीं। तो जनाब जब Thank you, sir, for letting me talk on the supplementary demand for grants. Sir, I would like to start on a positive note. Last session and during one of the finance discussions, we had raised a demand for setting the GST right for mango puree and mango pulp. We had given a representation. So I would like to thank the Honorable Finance Minister Nirmala Sitharamanji and Karatji for setting that right and helping our mango farmers. So I mean, I hope they have all the best wishes from the farmers. Sir, and coming into the supplementary demand for grants, sir, if you see that there has been an increase in the allocation for Manreka by 16,400 crores, but if you see overall, it is a reduction of 8,600 crores compared to the previous year. Sir, it is not right in cutting down the funds for Manreka because especially after the pandemic, Manreka supported the downtrodden, Manreka supported the livelihoods of the poor people. So I urge the government not to cut down on Manreka. If you see for the case of Andhra Pradesh, sir, only 14 crore mandates have been allotted and it's a reduction of 9.68 crore mandates. So which is not a welcome thing, sir. We demand the government not cut down the spending on Manreka and increase the allotment for Manreka. And if you see the fiscal indicators, the budget, in the budget, the fiscal deficit has been pegged at 6.4%. But if you see, I mean, it is concerning that the fiscal deficit in the first half of financial year 22-23 rose to 6.2 lakh crores compared to 5.27 lakh crores the previous year. So the government should explain how it is going to peg the fiscal deficit at 6.4% of GDP, and also, without cutting the capex allocation, sir. So we also want to know, is the government going to spend the complete 7.5 lakh crore they have allocated for capital expenditure, which is 24% higher than the previous year? But it's only 4 months left, and we don't know, sir, how the government is going to reach their capex targets. Without a proper capex allocation, it's very difficult for the economy to bounce back. And like all the states, sir, we also have a demand. We demand the central government to extend the GST compensation by 5 more years because of the pandemic and various other reasons prevailing in the economy. And it is also very concerning to note that the central government's revenues from cesses and surcharges has increased from 10.4% in 2011-12 to 26.7% in 21-22, sir. This is not fair because the states
revenues, I mean, what this money the states have to get is going in the form of surcharges. So we demand that the surcharges also be part of the devolution of taxes to the states. And such an increase, sir, if you see in the last 10 years, 10% has become 26.7%, which is not good, sir. The states set to lose the revenues. And coming to the issue of our state, so while the division of our state, sir, in the year 2014-15, the first year, whatever revenue deficit we had or a resource gap, they said it will be funded, sir. If you see, there's close to 32,000, sir, for Andhra Pradesh. So far, even in spite of 8 years, this issue has not been sorted out. So we asked the government, the finance ministry, to sort out this resource gap funding issue. We have represented various times. It's not just one time, we have represented n number of times. So we request the government to act on that. And even there's one more issue, sir, I would like to bring to the notice of the Honorable Minister and the Finance Department. The net borrowing ceiling for Andhra Pradesh has been pegged at 42,472 crores for 21-22, sir. But because of the overborrowing of the previous government, when BJP and TDP were in power in our state, they had overborrowed 17,923 crores during the 14th Finance Commission time, sir. And now that net borrowing ceiling limit is being cut down, sir, which is not fair. We can't suffer because of the doings of the previous government, sir. So we request the government to not to link it, sir. And even if you see a circular which has been given by the Finance Ministry, which says that the overborrowings of the previous finance commissions will not be adjusted in the 15th Finance Commission. Even by that order what the Finance Ministry has passed, this 17,000 crores which is being cut in our net borrowing ceiling should not be adjusted in this current thing, sir, in the current 15th Finance Commission. So we also had a national project, sir, and it is clearly stated in the AP Reorganization Act that Polavaram project is a national project and it will be executed by the center. But if you see today, sir, the execution of the project is not going according to plan anywhere. The funds for the project are not being given in time, and it is no way treated like a national project, sir. Polavaram project is the lifeline of our state, Andhra Pradesh. During the division, they said that Polavaram project will be done, sir. It was there in the AP Reorganization Act. It clearly states. But if you see, there are various issues which are coming up, sir. During the course of the project, and because of the new land acquisition rules, the cost of the project shot up. The land acquisition and R&R cost shot up, and the central government and Jal Shakti approved the cost estimate at 55,548 crores. The technical advisory committee passed it in 2019, sir. But till now, the finance department is yet to ratify it, and it's still pending for approval from the finance department, which is not good, sir. It is not happening with any national project. And it's more surprising is that in any dam which is being built, or the dams which are built previously in all the national projects, nowhere the drinking water component and the irrigation component was made separate, sir. Here, they are saying that the drinking water component is not part of this, and we are going to exclude this amount, which is 4,068 crores, which is not good, sir. You can't build a dam and say it's not meant for drinking, it's only for irrigation, and if you are going to use for drinking water purpose, we are going to reduce the amount. It is not fair for the department to say this, and we demand that the drinking water be also part, like any other national project which have been done in our country. And we also demand for removal of component-wise restrictions, sir. In spite of all the restrictions we are having, during the course of the project, there will be various components which will come up based on the designs. So any change in components, now they are restricting payments, which is not good. If you take, for example, a national highway project, the length of the bridge might go up, or the length of the road might go up, but still the execution happens, the whole road is completed. Nowhere they say that, no, now the component has increased, we will restrict the payment. It is not fair, sir. Why only for Polavaram they are doing like this? So we demand that a removal of component-wise restrictions for Polavaram project, which has been, the restriction has been imposed totally